علیکم ناظرین، آپ کا اپنا اسٹیمادی زندگی پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ۔ ناظرین ہماری یہی کوشش ہوتی ہے ایک پروگرام میں اس پرسنالٹی شخصیت کو ملایا جائے جس کا اپنا ذاتی بیک گراؤنڈ بھی ہو اور سوشل ایکٹیویٹی بھی ہو۔ تو الحمدللہ آج ایور گرین پرسنالٹی دا بریلین مین ہمارے لاڑکانہ کی ایک خوبصورت پرسنالٹی علی مراد ابلو صاحب آج ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں۔ چلتے ہیں علی مراد کے ساتھ، پوچھتے ہیں کرنٹ ایشوز کے مسئلے مسائل اور پروفائل انٹرویوز پہ۔ تو فرسٹ آف آل سر السلام علیکم سر، ویلکم ٹو مائی پروگرام آج کی شخصیت۔ میں آپ کو اپنے پروگرام میں مدد کرتا ہوں۔ فرسٹ آف آل آپ کے ناظرین، آپ کے چاہنے والے، آپ کے لاڑکانہ کی عوام اور لاڑکانہ سے باہر فارن میں رہنے والے لوگ یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے خاندان کا جو پروفائل ہے وہ تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں۔ شکریہ، تھینک یو۔ آپ کے چینل کا بھی۔ میرے خاندان کا پروفائل پاکستان کے پہلے سے ہے۔ میرے دادا پردادا زمیندار ہیں۔ پاکستان کے بعد ہم میروڈا گاؤں ہے، یونین کاؤنسل فلچ جو کو ٹکڑا کیا گیا ہے، اسی میں ہم رہتے تھے۔ میرے دادا یہاں مشیمہ کی جو لاکھرام ہے اس کے سامنے جگہ تھی، وہاں رہتے تھے، زمینداری تھی۔ اس وقت چیئرمین تھے، آج بھی چیئرمین ہی ہے، بیچ میں لازم وغیرہ سسٹم چلا تھا، اس وجہ سے چیئرمین اور اپنے قبیلے اپنے گاؤں والوں کے خدمت کرنے مشہور تھے۔ اچھا، وہ فقیر کے نام سے، فقیر علی مراد کے نام سے مشہور تھے۔ اور بھٹو صاحب کے ساتھ اس کی بہت بڑی صاحب بچی ہوئی تھی۔ بھٹو صاحب اس وقت وزیر خارجہ نئے نئے بنے تھے، اس حساب سے۔ اچھا، آپ کے جو والد صاحب تھے وہ اقتدار پہ کتنی مرتبہ رہ چکے ہیں؟ میرے دادا کے بعد بڑا نام ہے آپ کے والد صاحب کا، بڑا نام ہے، ایک بڑی پیپلز پارٹی کی پیاری شخصیت ہے۔ میرے فادر جو ہے پہلے تعلقہ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں پارٹی کے ووٹوں کے حساب سے، اس کے بعد ڈپٹی جنرل سیکرٹری رہے، پھر لاڑکانہ سٹی کے صدر رہے۔ اس بیچ جو ہے مشرف کا دور جب آیا تو بلدیات الیکشن ہوئی تو ان میں نائب ناظم لاڑکانہ پارٹی کا رہا۔ ان کی یہ کوششیں رہی ہے کہ پارٹی کے اندر جو میں رول پلے کر سکوں، جو میں خدمت کر سکوں پارٹی کو اور عوام کی، اس حساب سے وہ کرتے آ رہے تھے۔ آپ کا بچپن، کیونکہ آپ ایک شخص نئی شخصیت ہیں، آپ کا جو بچپن گزرا وہ بچپن کیسا گزرا؟ کہ آپ سینسیٹیو تھے یا آپ کی ایکٹیویٹیز جو ہوتی تھیں، ایک ہوتی ہے ایکٹیویٹیز، بندہ بچہ ہوتا ہے تو وہ بہت بڑا چاہتے ہوتے ہیں، یا اپنے خاندان میں ایک نقصان کرنے والا کوئی بچہ ہوتا ہے نا، ایسے کوئی چڑھاک طبیعت کا یا ایک ایسا کوئی سینسیٹیو، آپ کی طبیعت جو تھی وہ کیسی تھی؟ بچپن تو ایک بچپن میں الگ چیز ہے، شرارتیں بھی ہوتی ہیں، چھچڑاہٹ بھی ہوتی ہے، اور ایک سسٹم ہمارا یہاں مشہور ہوتا ہے کہ وڈیر کا بچہ ہے، ہاں بالکل ایسے ہے، کوئی بات کو یہ کرو یہ کرو۔ 12-15 سال تک تو یہی رہا، جب تک ذمہ داری کوئی ایسی نہیں تھی تو یہ اپنوں سے، ماں باپ سے تو نخرے ناراضگیاں سب چلتی ہیں، تو اس حساب سے تو وہ چل رہا تھا سب کے جیسے چلتے ہیں۔ میں بھی صحیح تھا، تھوڑا چڑچڑا والا میرا ماحول تھا۔ اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ بلانگ کرتے ہیں پیپلز پارٹی سے، آپ نے پیپلز پارٹی کو بڑا ٹائم دیا ہے، آپ پیپلز پارٹی کے بڑے خدمت کار بھی رہے ہیں، ایک اچھے لیڈرز ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے اس معاشرت، یہ جو ہماری معاشرت گر چکی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا سندھ گورنمنٹ ہے یا وفاق گورنمنٹ ہے؟ آپ کس کو دوشی ٹھہراتے ہیں؟ ہم دور کیوں جاتے ہیں، نزدیک ہی آ جاتے ہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں اس کے۔ زبردست۔ آپ گورنمنٹ کو چھوڑیں، ہاں، آپ یا میں کیا رول پلے کرتے ہیں؟ صحیح بات ہے، اپنی معیشت کے حساب سے، اپنے ملک کے حساب سے، اپنے شہر کے حساب سے، 0-0 اور پھر تو 0-0 معیشت کیسے سنبھلے گی؟ اچھا، ایک ادارے کا ملازم
वो कहता है कि भाई मुझे 500 रुपये दो, हाँ इदारा की 5 लाख रुपये दो, हाँ मुझे 500 दो, मेरा काम 500 दो, मेरा काम नहीं करे, अच्छा इदारा जाए भाग। सही। अच्छा, इसका जो कसूरवार है वो CM होगा या प्राइम मिनिस्टर होगा, हाँ या लोकल बंदा जो देने वाला होगा, जो 500 देने वाला, जो देने वाला होगा। हाँ अगर वो 500 रुपये उसको नहीं दे, हाँ कहे कि भाई जो कानूनी तरीका है वो अख्तियार करना है, सही, तो उसका मुंह बंद हो जाएगा। अच्छा पहले शुरुआत तो यहाँ से करें। अच्छा सर, इस फ्लड के दौरान ये जो फ्लड का सिलसिला था, तो अब तो हमारा पाकिस्तान ऐसे समझो कि बहुत साल पीछे जा चुका है। आप क्या समझते हैं, क्या ये रिकवर होके पाएगा? मेरे ख्याल रिकवर होने के लिए कुछ टाइम, बड़ी तकलीफ सहनी पड़ेगी। हाँ, अगर सियासतदान और जो मुख्तलिफ एजेंसियाँ अगर मिलकर ये समझे और सोचे कि पाकिस्तान को चलाना है और अब कोई भी सिस्टम को बिगाड़ना नहीं है, तो ये रिकवर हो जाएगा। अच्छा, अगर जो लोग जैसे चल रहे हैं तो फिर अल्लाह ही जाने इस मुल्क का क्या होगा। अच्छा सर, लोगों का ये भी कहना है कि हमारे इस पार्टी के जो सिस्टम का सारा जो टोटली जिम्मेवार है वो आसिफ अली जरदारी है, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी कन्वर्ट टू आसिफ अली जरदारी। तो इस चीज़ का जो भी जिम्मेवार है वो डायरेक्टली कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी। आप क्या कहते हैं? आप कैसे कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी जिम्मेवार है? आसिफ अली जरदारी साहब ने आपको 18वीं ज़मीन दी। अच्छा, आसिफ अली जरदारी ने सूबे को हकूक़ दिए हैं। आसिफ अली जरदारी को मुल्क टूटने से बचाया है। जब मोहतरमा की शहादत हुई तो मुल्क टूटने लगा था। बिल्कुल। इन्होंने कहा भाई पाकिस्तान खप्पे वाला नारा लगा। हाँ, खप्पे वाला नारा मतलब यकजहत किए, चारों सूबे इकट्ठे हो गए, एक मर्डर तो हुआ है, शहादत तो एक हुई है। बिल्कुल। वो भी एक ऐसी शख्सियत जो न भूलने वाली शख्सियत का, जो पूरे मुल्क पूरी दुनिया में एक अलग पहचान होती थी। आसिफ अली जरदारी ने मुल्क को बचाया है, उन्होंने मुल्क का नुकसान नहीं किया। 18वीं तरमीम जो आज आप ये समझते नहीं कुछ लोग, सुबह को जो हकायत मिले हैं, सुबह को आपकी मार्की मिली है, तो जरदारी साहब ने कौन सा बना। अच्छा अच्छा सर, दूसरी बात ये कि जब फ्लड हो रहा था तो बाहर मुल्क से इतनी इमदाद मिली डॉलर्स की सूरत में, रियाल की सूरत में, ऐसे समझो कि सामान की सूरत में इतना कुछ मिला। लोग कहते हैं कि अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो अगर एक बंदे को हम 5-5 लाख रुपए दें फिर भी पैसा ज़्यादा हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं, वो पैसा या वो सामान जो फॉरेन से डोनेट हो रहा था वो कहाँ गया? अच्छा, ये बात जो आप कह रहे हैं कि बाहर मुल्कों ने हमें डॉलर्स दिए, हमें रियाल दिए, इसका तो कोई रिटर्न में नहीं है कहीं। खाली एक बात है, पहले तो मैं जो कह रहा हूँ या जो आप कह रहे हैं डॉलर की सोच, जाहिर है वो डॉलर किसी की जेब में तो नहीं जाते, बिल्कुल बैंक में आती है, एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू आता है, उसके हिसाब से लोगों को पैसे मिलेंगे। जो हमारे ऊपर से आदर्श आते हैं या पार्टी जो हमें बताती है कि जो जगहें जिनकी मसवार हो चुकी है या जो बारिश में गिर चुकी है उनको बनाने के लिए एक सिस्टम बन रहा है। ऐसे नहीं है, गवर्नमेंट के पैसे ऐसे होते हैं, आप लेने जाएंगे तो आप इतना बड़ा फाइल बनाओगे, फाइल बिल्कुल ऐसे ही, जब देने जाएंगे तो आप एक पर्ची मिलेगी, बिल्कुल ऐसे ही। ये भी एक सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से ये पैसे आएंगे इंशाल्लाह। हमारा चेयरमैन साहब जो है ना वो सीरियसली जी वो ये कोशिश कर रहा है कि ये पैसे किसी और के जेब में न जाए, जिसका हक है उन तक राइट। अच्छा सर, वो ब्रेक का इशारा मिल रहा है, नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से छोड़ा था। चंद सेकंड के लिए हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमाम ज़िंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत। कोई ऐसा आपका कोई वाक़या? डेथ ऑफ माय ब्रदर।
उन माण्हू खे ज़िमेदारी ॾिनी वई आहे जंहिं माण्हू जो सिंध जहिड़े नमूने सां आदुरभाउ करे रही आहे हू अरबाब साहब खे बि मालूम आहे, PTI खे बि मालूम आहे। तो आपको अपना जहन और सब्र बहुत ज़रूरी है। उन रबाब जो ऐं हिन वक़्त ताईं उहा न्याणी जेका आहे सो कोर्टुनि ऐं अदालतुनि जा पहिरें उघाड़े चकर थी काटे। नाज़रीन, ज़िंदगी रही बाकी तो होंगे मरे गुफ्तगू, ज़िंदगी रही बाकी तो होंगे मरे गुफ्तगू, गुजर गए इस रात तो सलाम आखिरी, विश यू ऑल द बेस्ट, पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ा था। आज हमारे स्टूडियो में एक ब्रिलियंट शख्सियत, यंगेस्ट पर्सनालिटी लाड़काना अली मुराद अब्रो साहब हमारे प्रोग्राम में मेहमान है। चलते हैं हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करते हैं। सर, आपने कहा कि वज़ीर ख़वाजा बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब, अच्छा सर, आप समझते हैं कि बिलाल साहब मोहतरमा का वो खाल, मोहतरमा की वो एक्टिविटीज़, मोहतरमा का वो मैच, क्या इसको कंटिन्यू कर पाएगा? मोहतरमा जब भुट्टो साहब शहीद हुआ था तो कोई नहीं कह रहा था कि भुट्टो साहब का कोई ख्याल जो है कोई भर सकेगा। सही। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता मोहतरमा आगे बढ़ती गई तो अल्लाह उसको जरूर नसीब करे, तो लोग ये कहने में मजबूर हैं कि ये भुट्टो साहब से आगे निकल। सही। ये 100%। अब बिलाल साहब के बारे में कुछ लोग ऐसे कहते हैं, जो उसकी मेहनत है, जो जिस तरह वो काम कर रहा है, तो मेरा दिमाग ये कह रहा है, मेरी सोच जो है वो ये कह रहा है अगर आगे ना निकल सका तो मोहतरमा जैसा खाल वो भर सकेगा। अच्छा, वो भर सकेगा इंशाअल्लाह ताला। हमारी उम्मीद है अभी उन पे सिंध की नहीं पूरे पाकिस्तान आवाम की उम्मीद वो ही है कि इंशाअल्लाह एक ही बनता है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जो पाकिस्तान को आगे लेकर। अच्छा सर, जब ये फ्लड के माहौल के दौरान कोई भी सिस्टम डोनेट सही नहीं हो पाया, एसपीज़ की कारकर्दगी, DCOs की कारकर्दगी वो आपके सामने है। एक लाड़काना का DCO वो आपके सामने है कि वो मुल्क छोड़ जा चुका है। तो इस सिस्टम के दौरान पार्टी की अब कौन सी कमान है कि ये चीज़ें सही आदमी तक डिलीवर हो पाए? क्या एक्शन लिया जा रहा है इस चीज़ पे? इसमें आप ब्यूरोक्रेट्स को आप छोड़े, हम तो पार्टी के हिसाब से आप बात करेंगे। ब्यूरोक्रेट्स भी वो लाते हैं, गवर्नमेंट लाती है, बिल्कुल ठीक है। अब DC आप कह रहे हैं कि भाग गया है, जो वो पेपर्स बता रहे हैं कि वो ट्रेनिंग पे गया हुआ है। सही। ट्रेनिंग पे गया हुआ है, तो इससे आप भागना तो नहीं कह सकते। बिल्कुल। और वो भागेगा भी क्यों? ना तो कोई इंक्वायरी है, ना कोई वैसा फैसला है। ये लाड़काना सबसे पहले साफ हुआ। हमारे लाड़काना के एक बेहतरीन लीडर्स जो पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत अरसे से चल रहे हैं, जैसे नादर खान मंगसी, जैसे सरदार खान चांडू साहब, और जैसे सफदर मिठान साहब, तारिक साहब, और हमारे जो है जमील सुमरो साहब। इस फ्लड के सिस्टम में आप किसकी कारदगी से बता सकें? जमील सुमरो साहब ने अपने हिसाब से काम किया जी, वो स्टूडियो बन सका उसने काम किया। शेर साहब ने अपने इसमें काम किया, ताज साहब ने जहाँ वो पहुँच सके उन्होंने काम किया। अब इसमें चटाबेटी होती नहीं कि किसने कितना बड़ा काम किया, लेकिन जिसने जो भी थे सब ने मिलजुल कर आवाम के लिए, वर्कर्स के लिए, पार्टी के लिए और मुल्क के लिए बेहतर काम किया। इन 500 लीडर्स में से आपकी फेवरेट पर्सनालिटी कौन है? आप किसको लाइक करते हैं? मैं शेर अहमद साहब को लाइक करता हूँ। ओह, दैट्स क्लियर। वो BSP वही है,
यूनियन काउंसिल में उसका भाई है सही। और मेरे लिहाज से मेरा बेहतर पसंदीदा बंदा है। अच्छा सर, वफाक की तरफ चलते हैं। वफाक इतने बड़ी दावा कर रहा है कि मैंने फिल्ड में इतने करोड़ रुपए दिए थे इमरान वाली साहब का, हमारे वज़ीर आज़म, कि मैंने इतना सिंध को दिया, इतना सिंध को दिया, इतना सिंध को देने जा रहा हूँ और इतना सिंध को दूंगा। तो आप क्या समझते हैं, क्या इमरान नियाज़ी साहब की ये दावा सही है? और दूसरी उसकी दावा ये है कि आने वाली इलेक्शन मेरी है और सिंध के लोग मेरा साथ देंगे। आप क्या समझते हैं, क्या इस बार सिंध के लोग इमरान को दोबारा साथ देंगे? मेरा नहीं ख्याल कि सिंध के लोग इसका साथ देंगे। एक तो ये यू टर्न होता है ना, कभी कभी लोग होते हैं ये इनका यू टर्न तो अगले दिन यू टर्न, फिर यू टर्न। अच्छा, किसी एक बात पे वो ठहरता नहीं। अच्छा, उसका कहने का ये मकसद है कि मैंने 3.5 साल जो हुकूमत की वो मैंने एक ऐसा समझो कि जो मुल्क के खाल थे वो मैंने पूरे करने की कोशिश की है और वो मैंने पूरे किए हैं। अब मैं मुल्क को खूबसूरत बना कर दिखाऊंगा, उसकी बातें हैं। तो फिर ये लाखों घर कहाँ बने हैं? ये जो इनकी बातें थी वो कराची पैकेज का है, ऐलान करके चला जाता था, वो कराची पैकेज का है। इनकी लाजवाब स्थिति तो बहुत ख़राब थी, वो तो इसको छोड़ेगा, लेकिन इनके जो वादे थे वो कहाँ हैं? इस बार इलेक्शन में 2 पर्सनालिटीज़, आदिल उमर साहब और लियाकत अली जतोई साहब, दोनों ने वो अपने इलाके विन किए। आप समझते हैं कि वहाँ पे ये क्यों हुआ? क्योंकि एक तो लाड़काना कैसा है, क्या पीपल्स पार्टी के लोगों ने वहाँ पे काम नहीं किया या और कोई था? देखिए, ये कोई बादशाह तो है नहीं कि भाई हम सारे सूबे को जीत जाए, अपनी मुट्ठी में ले लें। सही। जहाँ जहाँ किसी बंदे ने काम न किया होगा, हाँ, ये जमहूरियत तो यही है। अच्छा सर, हर इंसान एक पहलू से गुजरता है, दुख हो, ये हर इंसान का हिस्सा होते हैं, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, कैसा भी हो, किस कैटेगरी लेवल का भी हो। आपके लाइफ का कोई ऐसा दुख जो आपको सारी जिंदगी याद रहे? जैसे आप तो खुद ही कह रहे हैं हाँ, कि 2 हिस्से होते हैं, 2 पहलू होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। दुख के बाद जो सुख का मजा होता है वो अलग होता है। अलग होता है, बिल्कुल ऐसे ही वो है। कुदरत ने एक सिस्टम ये सब बनाया है हाँ, कि दुख के बाद हाँ, जो सुख मिलेगा उसमें मजा अलग है। ये सब आते हैं, सबकी ज़िंदगी में आते हैं, हमारी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में भी आए होंगे। सही। लेकिन ये बताना अपनी कमज़ोरी अच्छा, किसी को कि यहाँ में हाँ। मुझे तकलीफ हुई थी, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा, लाइफ के सफ़र के दौरान ये पूरा लाइफ का सफ़र जो है इंसान को खुद अकेले से काटना पड़ता है। आपके लाइफ के इस पूरे से सफ़र में आपको दोस्त ज़्यादा मिले कि दुश्मन? दोस्त 100% श्योरिटी दोस्त ज़्यादा मिले। अच्छा सर, हर इंसान का कोई न कोई एम होता है, गोल होता है, मकसद होता है। मेरा भी वो मकसद है, मैं गोल है, मैं अपने उस गोल पे ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। आपका भी कोई ऐसी ख्वाहिश होगी, कोई ऐसा गोल होगा। चलो, एक बार ऐसा हो जाता है कि मेरे अल्लाह के सामने जो भी चीज़ हो वो हो जाती है। एक मरतबा ऐसा होता है कि आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं कि अली मुराद, आपको वज़ीर आज़म बनाया जाता है, दूसरा आपको सदर बनाया जाता है, तीसरा आपको गरीब लोगों के बीच में आपको रहना है। तो इन तीनों चीज़ों में से आप कौन सी चीज़ सिलेक्ट करेंगे? क्या वज़ीर आज़म, क्या सदर, या गरीब लोगों के बीच में रहना? ये ज़बानी बात मैंने कहा, चेयरमैन, ये दिल के अंदर की बात है। बंदे का ये शौक है बंदे को आज के माहौल में, आज के सिस्टम में कि मैं सबसे आगे हूँ, आगे रहूँ। लेकिन ऐसी ज़िंदगी में नहीं चाहिए जो न रिश्तेदारों से मिल सके, जो न आखिरत में उसका कोई साथ दे सके। इससे बेहतर ये आम बंदे, आम लोगों में घुल मिल कर अपना खिदमत करते रहे, ज़िंदगी बसर करते रहे और कोई ये टेंशन भी ना हो कि किसी
مثلا مولا علی کا ایک میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے کہا کہ ایسی دولت کیوں مانگوں آپ سے جو حق حلال کی بھی ہے، پھر بھی مجھے حساب ہو، جو حق حلال کی ہو کمائی ہو پھر بھی مجھے حساب دینا پڑے کہ زکوٰۃ تو نے دی کہ نہ دی، تو نے پڑوسی کا خیال رکھا کہ نہیں رکھا. اس طرح شوق تو بند ہو سکتا ہے، بالکل ایسے ہی. دل تو کہہ سکتی ہے بالکل. کہ میں ایسی عیاشیوں میں گھوموں، وزیر اعظم صدر بن جاؤں، لیکن یہ زندگی ہے کہ 50 سال کے قریب ہے، پتا تو ایسا بھی نہیں ہے ایسا بھی نہیں کل ہوگا یا ہوگا 5 منٹ کے بعد ہوگا کہ نہیں ہوگا. بالکل صحیح. لیکن جو ہم تو 5 وقت، میں تو 5 وقت نماز پڑھتا ہوں صبح سے لے کر، سو میری کوشش یا دعا یہی ہوتی ہے اللہ سے کہ میں سیاست میں ہوں، صحیح رہوں، لیکن خدمت غریبوں کی کر وہ بہتر ہے. اچھا علی مراد صاحب کیا کریں، آپ کی گفتگو سے اتنا مزہ آ رہا ہے اور لوگ بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن وقت کی دور جو ہوتی ہے وہ سنگ دل ہوتی ہے. ہمارے ٹائم کا پیریڈ کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے. لاسٹ میں آپ کی طرف سے اپنے لاڑکانے کی عوام کے لیے، لاڑکانے کے غریب لوگوں کے لیے، یا اپنی پارٹیز کے لیے، یا کسی بڑے NGOs کے لیے، ان لاڑکانے کی غریب عوام کے لیے کوئی پیغام؟ میرے دوستوں سے لاڑکانے والے ہوں یا جو چینل یہ سب دیکھ رہے ہوں، یہی گزارش کرنا کہ اللہ پہ بھروسہ کریں، کسی کے آگے نہ جھکیں، صحیح نماز پڑھیں، اللہ سے مانگیں، وہ دینے والا ہے. صحیح بات ہے. اگر آپ کو پیٹ میں بھی درد ہے تو پہلے اللہ سے بے شک کہ مجھے شفا دلوائے. یہ ڈاکٹر وغیرہ تو ہیں، یہ بھی اسی ہیلے وسیلے سے ہے، لیکن اللہ کے اوپر جس نے ایک بات کیا وہ آگے اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں. سو میرا میسیج یہی ہے کہ نماز پڑھیں، اللہ کو دیکھ کے رکھیں، آپ کی منزل آسان ہو جائے گی. ناظرین، ایک بہترین سا شعر ہے، کل کا آج نہیں ہوتا، ہر پل بھی راج نہیں ہوتا، رہے سر پر ہمیشہ زندگی میں ایسا کوئی تاج نہیں ہوتا. آج لاسٹ میں آپ نے میسیج سنا، بیسٹ آف دی بیسٹ میسیج، کہ آپ کو جو بھی چاہیے خدا سے مانگو، اپنے رب سے مانگو، اور جو بھی تکلیف ہو پہلے میرے رب کو انفارم کرو. یہ میسیج تھا ہمارے آج کی بریلین پرسنالٹی کی طرف سے. مجھے اور آج کی شخصیت علی مراد ابرو صاحب کو دیجیے گا اجازت. زندگی رہی باقی تو ہوں گے موے گفتگو، گزر گئے رات تو سلام آخری. وش یو آل دا بیسٹ. پاکستان زندہ باد.